حضرت آمنہ کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی کو گھبرائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ میری امی جان کو کیا ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت صرف 6 سال تھی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، دل گھبرا رہا تھا، اور بار بار ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی سے کہہ رہے تھے کہ امی جان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آمنہ کے شوہر حضرت عبداللہ کی وفات کو 6 سال گزر چکے تھے۔ حضرت آمنہ اپنے شوہر عبداللہ کو بہت یاد کرتی تھیں اور اکثر راتوں میں انہیں یاد کر کے رویا کرتی تھیں۔ لیکن قسمت کا فیصلہ کیا کہ 6 سال گزر چکے تھے اور ابھی تک اپنے شوہر قبر پر بھی جانے کا موقع نہ مل سکا۔ آخر بے چین ہو کر ایک دن حضرت آمنہ نے مدینہ جانے کا ارادہ بنا ہی لیا اور اپنے سسر حضرت مطلب سے آ کر فرمایا کہ بابا جان، میں کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر مدینہ جانا چاہتی ہوں، آپ اجازت دے دیں۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بیٹا، چلی جاؤ۔ حضرت آمنہ نے سفر کا سامان تیار کیا اور اپنی لونڈی ام ایمن اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک اونٹنی سے مدینہ کی طرف چل پڑیں۔ اس وقت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 6 سال تھی۔ مکہ سے مدینہ کی دوری 400 کلومیٹر ہے۔ اس وقت لوگوں کی آبادی بہت کم تھی۔ راستے میں سناٹا ہی سناٹا رہتا تھا اور ہر طرف ایک ویرانی اور وحشت ہی محسوس ہوتی تھی۔ لیکن یہ 3 لوگوں کا قافلہ آہستہ آہستہ مدینہ کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ اس قافلے میں مردوں میں صرف ایک 6 سال کا بچہ تھا، پر حضرت آمنہ کی آنکھوں میں کبھی آنسو بہتے اور کبھی دل میں ایک تڑپ اٹھتی کہ آج میں اپنے شوہر عبداللہ کی قبر پر جا رہی ہوں۔ جا کر مدینہ میں اپنے گھر والوں سے پوچھوں گی کہ وہ کیا منظر تھا جب میرے شوہر اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے، انہیں کیسا درد اٹھا تھا، وہ مجھے کیوں اس بھری جوانی میں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے تو ابھی اپنے شوہر کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات ہی کی تھی۔ شادی کو صرف چند ہی مہینے گزرے تھے کہ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ آج 6 سال گزر چکے ہیں، میں انہی کی یادوں کا سہارا اپنا کر زندگی گزار رہی ہوں۔ یادوں کا ایک طوفان تھا جو حضرت آمنہ کے دل میں برپا تھا۔ اونٹنی سفر کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ 10 دنوں کا سفر کر کے حضرت آمنہ مدینہ پہنچی۔ پہنچتے ہی حضرت آمنہ نے جیسے ہی اپنی امی کو 6 سال کے بعد دیکھا تو شوہر کا وہ غم جو ابھی تک دل میں تھا ابھر کر چہرے پر آ گیا، اور پھر حضرت آمنہ اپنی امی سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگیں۔ حضرت آمنہ کے آنسو آج سارے گھر والوں کو ان کی درد بھری داستان سنا رہے تھے کہ اس 25 سال کے نوجوان لڑکی حضرت آمنہ نے زبان سے ایک لفظ بھی نہ بولا۔ آج 6 سالوں کے بعد اپنی ماں پر نظر پڑی تو حضرت آمنہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکیں اور اپنی امی سے لپٹ کر سب کچھ کہہ ڈالا۔ حضرت آمنہ کی امی اپنی بیٹی کو دلاسا دے رہی تھیں اور وہ کہہ رہی تھیں، بیٹی پریشان نہ ہو، اللہ تجھے اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت آمنہ کی امی نے جب اپنے نواسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بہت خوش ہوئیں اور ہر ایک کے سامنے تعریفیں کرتے نہ تھکتیں کہ ذرا میرا نواسہ کو تو دیکھو، اللہ نے اسے کیسی خوبصورتی عطا فرمائی ہے۔ 2 دنوں کے بعد حضرت آمنہ اپنے شوہر عبداللہ کی قبر پر پہنچیں۔ قبر کے پاس بیٹھ کر بہت دیر تک روتی رہیں اور دل ہی دل میں اپنے شوہر سے کچھ کہہ رہی تھیں۔ شاید وہ یہ کہہ رہی ہوں گی کہ اے عبداللہ، تو مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ میں نے تو تمہارے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے لیے سپنے دیکھے تھے، لیکن تم نے تو مجھے زندگی کے سفر میں ہی اکیلا چھوڑ دیا۔ مجھے تمہارے بغیر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ عبداللہ، کاش کہ تم زندہ ہوتے تو آج اپنی اس آمنہ کا غم دیکھتے۔ میں تو گھر میں امید لگائے بیٹھی تھی کہ آپ 2 مہینوں میں واپس آ جائیں گے، لیکن آپ تو کبھی واپس نہ آئے۔ اے عبداللہ، کاش کہ تم زندہ ہوتے تو آج اپنے اس چاند جیسے خوبصورت بچے کو دیکھتے کہ اللہ نے تیرے بچے کو کیسا حسن عطا فرمایا ہے۔ اے عبداللہ، کاش کہ تم زندہ ہوتے تو اپنے اس یتیم بچے کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر بازاروں میں گھماتے، اس کے لیے اچھے اچھے کھلونے لاتے، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے۔ لیکن اے عبداللہ، یہ تمہارا چاند سا خوبصورت بچہ یتیم ہو گیا ہے۔ اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ تیرا یہ پیارا بچہ اپنی زبان سے تو کچھ نہیں بولتا، لیکن اس کے دل میں بھی محلے کے دوسرے
बच्चों को देखकर ये ख्याल ज़रूर आता होगा कि आए काश मेरे अब्बा ज़िंदा होते तो वो भी मुझे अच्छे अच्छे खिलौने ला कर देते, मुझे बाज़ारों में घुमाते, प्यारे प्यारे कपड़े पहनाते। हज़रत आमना अपने शोहर कब्र के पास बैठी रोई जा रही थी और फिर शाम होते होते अपनी बांदी उम्मे ऐमन के साथ घर वापस आ गई। हज़रत आमना ने 1 महीना अपने मेके मदीना में गुजारा। फिर एक दिन अपनी माँ से कहा, अम्मी जान अब मैं घर वापस जाना चाहती हूँ, आप मुझे इजाज़त दें। माँ से इजाज़त लेकर हज़रत आमना मक्का की तरफ चल पड़ी और ऊँटनी पर सबसे आगे हमारे आका हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। फिर हज़रत आमना और सबसे पीछे उम्मे ऐमन थी। ये 3 लोगों का काफ़िला मक्का की तरफ रवाना हुआ। हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे मामू और खालाएँ इन तीनों को मदीना के बाहर तक अलविदा कहने आए और फिर ये 3 लोगों का काफ़िला मक्का की तरफ रवाना हो गया। 3 दिनों के सफ़र के बाद ये काफ़िला अरब की सबसे वीरान जगह से गुज़र रहा था। वो जगह का नाम अबवा है। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था, घनी झाड़ियाँ, काले स्याह पहाड़ थे और इस रेगिस्तान वीरान इलाके से इन 3 लोगों का काफ़िला मक्के की तरफ चलता जा रहा था। हज़रत आमना जब से अपने शोहर कब्र से वापस आई थी तो उनके दिल पर बहुत गहरा सदमा लगा था। वो बड़ी खामोश रहती थी। रास्ते पर वो अंदर ही अंदर आंसू के घूंट पी रही थी, लेकिन अपने इस मासूम बच्चे के सामने कुछ भी ज़ाहिर नहीं कर रही थी कि कहीं मेरे बच्चे को कोई तकलीफ़ ना हो। अबवा के मकाम पर पहुंचकर अचानक हज़रत आमना के सीने में दर्द उठा। उन्होंने हज़रत उम्मे ऐमन को फ़ौरन बताया कि मुझे सीने में दर्द हो रहा है। हज़रत उम्मे ऐमन ने हज़रत आमना से कहा कि आप परेशान ना हों, मैं ऊँटनी को किसी ऊंची जगह पर रोकती हूँ। और फिर हज़रत उम्मे ऐमन ऊँटनी को एक ऊंचे टीले पर लेकर पहुँची। उस जगह पर पत्थर का एक तख्त सा बना हुआ था। उन्होंने हज़रत आमना को ऊँटनी से उतार कर इस पत्थर पर बिठा दिया। हज़रत आमना के बार बार सीने में अजीब सा दर्द उठ रहा था। शायद उन्हें अपने शोहर का गम बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए उन्हें दिल का दौरा आ रहा था। हज़रत आमना बार बार अपना सीना पकड़ रही थी और दर्द को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी को घबराई हुई निगाहों से देख रहे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि मेरी अम्मी को क्या हो रहा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक़्त सिर्फ 6 साल थी। आंसू भरे हुए थे, दिल घबरा रहा था और बार बार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी से कह रहे थे कि अम्मी जान, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो, आप खामोश क्यों हो, मुझसे बात करो। अम्मी हज़रत उम्मे ऐमन हज़रत आमना के हाथ पैर दबा रही थीं और उनके सर पर हाथ फेरते हुए कह रही थीं कि आए आमना, हिम्मत रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। लेकिन हज़रत आमना समझ चुकी थी कि शायद अब जाने का वक्त आ चुका है। हज़रत आमना दर्द की वजह से बार बार अपनी आँखें बंद करती और खोलती। हज़रत आमना आँखें खोलकर अपने इस 6 साल बच्चे को देखती और दिल ही दिल में सोचती कि अब मेरे इस यतीम बच्चे का क्या होगा। मेरे बच्चे ने अपने आप को साया तो देखा ही नहीं और अब मैं भी इसे छोड़कर जा रही हूँ। ना बहन है, ना भाई है, मेरा बच्चा अब किसके सहारे जिएगा। हज़रत आमना दर्द की वजह से बार बार अपनी आंखें बंद कर लेती, लेकिन हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी को बुलाते और रोते हुए पूछते कि अम्मी जान, आपको क्या हो रहा है। शायद हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुछ समझ चुके थे, लेकिन फिर भी 6 साल का बच्चा क्या जाने कि उसकी माँ को क्या हो रहा है। आज तक हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को मरते हुए नहीं देखा था। आखिर हज़रत आमना ने मौत से कुछ सेकंड पहले ज़ोर लगाकर अपनी आंखें खोलीं और अपने 6 साल के बच्चे के सर पर हाथ रखते हुए कहा कि बेटा, परेशान ना होना, अब मैं जा रही हूँ, लेकिन सारी दुनिया को एक ऐसा बच्चा दे के जा रही हूँ जो सारी कायनात को रोशन करेगा। ये कहकर हज़रत आमना ने हज़रत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना सर अपने सीने पर रख लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि मेरी अम्मी की कोई आवाज़ नहीं आ रही है, तो सर उठाकर देखा तो हज़रत आमना की वफ़ात हो चुकी थी।
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी को बुला रहे थे और कह रहे थे कि अम्मी जान उठो, मुझसे बात करो, मैं आपके बगैर कहीं नहीं जाऊंगा, मेरा मक्का में आपके सिवा कौन है। हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए अपनी अम्मी को उठा रहे थे और हज़रत ऐमन बार बार हमारे हजूर को दिलासा दे और कह रही थी कि बेटा तुम्हारी अम्मी अब हम में से सबको छोड़कर जा चुकी है, वो अब कभी वापस नहीं आएंगी। हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी से लपट कर रो रहे थे और ऐमन से कह रहे थे कि खाला जान मेरी अम्मी उठ क्यों नहीं रही, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही, मैं अपनी अम्मी के साथ मक्का जाऊंगा, मेरा इनके अलावा कौन है। नाज़रीन, वो क्या खौफनाक मंज़र होगा कि मक्का मदीना की आबादी से बहुत दूर एक सुनसान इलाके में 6 साल का बच्चा अपनी माँ से लिपट कर रो रहा है और अपनी माँ को मरते हुए देख रहा है। शायद उस दिन आसमान के फरिश्ते भी रो रहे होंगे। उस वक़्त हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ़ हज़रत आमना की नौकरानी उम्मे ऐमन थी, जो कि घर के नौकरानी थी। घर के नौकरानी से क्या दिलासा मिल सकता है। अगर अल्लाह चाहता तो हज़रत आमना को मदीना में वफ़ा दे सकता था। कम से कम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाला, मामू या नानी हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले लगा कर कुछ दिलासा दे देते। और अगर अल्लाह चाहता तो हज़रत आमना को मक्का में वफ़ा दे सकता था। कम से कम हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा दादा ही हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले से लगाकर दिलासा दे देते और मुसीबत के उस वक़्त में हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सहारा बनते। लेकिन अल्लाह ताला सारी दुनिया को दिखाना चाहता था कि आए लोगों, देख लो, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती है कि जिसकी खातिर मैंने सारी कायनात को बनाया है। इस बच्चे से मैंने इतनी मोहब्बत करता हूँ, पूरे कुरान में मैंने उसे नाम लेकर नहीं पुकारा, हमेशा मोहब्बत से पुकारा है। आए लोगों, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बच्चा है कि जिसके इशारे पर आसमानों में तलका मच जाता था, जिसके दुआ के हाथ उठते ही मैं दुनिया का निज़ाम बदल देता हूँ, जिसकी उंगली के इशारे पर मैंने चाँद के 2 टुकड़े कर देता हूँ। आए लोगों, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती है कि जिसे मैंने सारे जहान की खूबसूरती दी है। आ जाओ, आज सारी दुनिया वालों, ज़रा अबवा के मकाम पर आकर देख लो कि उस बच्चे पर कैसी मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। वो कैसी अपनी माँ से लिपट लिपट कर रो रहा है। आज उसे कोई सहारा देने वाला नहीं। हज़रत ऐमन ने किसी तरह पत्थरों को हटाकर कब्र बनाई, इसमें हज़रत आमना को उतारने लगी तो हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ से लिपट गए और कहने लगे कि खाला जान, मेरी माँ को इन पत्थरों में ना दफना, मुझे इन्हें साथ लेकर जाना है। हज़रत उम्मे ऐमन ने किसी तरह हज़रत आमना को कब्र में उतारा और फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर ऊँटनी की तरफ चल पड़ी। हज़रत उम्मे ऐमन ऊँटनी पर बैठने लगी तो पीछे मुड़कर देखा तो हमारे आका हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं थे। वो बहुत परेशान हो गई कि हजूर कहाँ गए। ऊपर टीले से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। दौड़ती हुई ऊपर गई तो देखा कि हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के कब्र से लिपट कर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि अम्मा जान, आप मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चली गई, मेरा आपके सिवा कौन है, ना मेरा कोई भाई है ना बहन है, अब मैं किसके सहारे ज़िंदगी गुजारूँगा। हज़रत उम्मे ऐमन ने पीछे से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया और कहा, बेटा चलो घर चलते हैं। हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं, मैं अपनी अम्मी के साथ रहना चाहता हूँ। हज़रत उम्मे ऐमन ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाकर ऊँटनी पर बिठाया और मक्का की तरफ चल दिए। उम्मे ऐमन फरमाती हैं, जब तक हज़रत आमना की कब्र नज़र आती रही, हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपनी अम्मी की कब्र को देखते जा रहे थे और मुझसे कह रहे थे, मुझे मेरी माँ के पास ले चलो, मैं उनके बगैर मक्का नहीं जाऊँगा। 4 दिन के सफ़र के बाद ये दोनों लोग मक्का पहुँचे। सारे रास्ते हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पल के लिए भी नहीं सोए और बराबर रोते रहे। जब उम्मे ऐमन हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का पहुँची तो हज़रत मतलब ने ऊँटनी की तरफ
देखते हुए पूछा, आए उम्मे ऐमन, आमना कहाँ है? सुनकर हज़रत उम्मे ऐमन रोने लगीं और हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दौड़कर अपने दादा से लिपट गए। ये देखकर हज़रत मुतलिब ने कहा, 3 लोग गए थे, फिर 2 लोग क्यों वापस आए हो? वो समझ गए थे कि कोई बुरी खबर ज़रूर है। फिर हज़रत उम्मे ऐमन ने सारा किस्सा सुनाया तो दादा हज़रत मुतलिब की भी आँखों से आंसू बहने लगे। फिर आपने पोते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले से लगाया। शायद वो सोच रहे होंगे कि मेरा पोते पर इतनी छोटी सी उम्र में कितनी मुसीबतें आ रही हैं। उन्होंने बाप का साया तो देखा ही नहीं और अब माँ भी छोड़कर चली गई। हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे चचा परेशान थे, हर एक का चेहरा उदास था और सब हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते जा रहे थे कि इस मासूम बच्चे को बचपन से ही कैसे कैसे गमों का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन, अम्मी की वफ़ात के बाद वो क्या मंज़र होगा कि जब हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में जाते होंगे और अपनी अम्मी के बिस्तर, कपड़े और उनकी चीज़ें देखते होंगे तो उस 6 साल के यतीम बच्चे पर क्या गुज़र रही होगी। अम्मी की वफ़ात के बाद हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खामोश रहते थे, किसी से बात ना करते। इस वाक़े के 50 से ज़्यादा सालों के बाद हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र अपनी माँ की कब्र के पास से हुआ। लाखों सहाबा कराम का लश्कर हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया कि तुम लोग इधर ही अब्वा के मकाम पर अपने ख़ैमे लगाओ और फिर हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हुए इस टेले पर पहुँचे जहाँ आपकी माँ की कब्र बनी हुई थी। उस वक़्त हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ कब्र से लिपट कर ऐसा रोए थे कि सहाबा कराम भी अपने आंसू ना रोक सके। कई घंटों के बाद हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर उठाया और फरमाया, काश कि मेरी माँ ज़िंदा होती और मैं ज़ुहर की नमाज़ पढ़ने के लिए मुसल्ले पर खड़ा होता और मेरी माँ पुकारती, बेटा मोहम्मद, तो मैं अपनी माँ के लिए अपनी नमाज़ तोड़ देता। बचपन में माँ की वफ़ात के बाद दादा अब्दुल मुतलिब ने अपने पोते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कफ़ालत में ले लिया और फिर हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा हज़रत अब्दुल मुतलिब के घर ज़िंदगी गुजारने लगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फ़रमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।